Class 9th students, you are in lesson climate. This is the fourth lesson of geography in class 9th climate. Okay, so you are going to study in detail about climate. Firstly, you will study about the difference between climate and weather. Okay. One of you read the first paragraph. Only one student. In the In last the two last chapters, you have read about the landforms and the drainage of our country. These are the two of the three basic elements that one learns about the natural environment of any area. In this chapter, you will learn about the third, that is, the atmospheric conditions that prevail over our country. Why do we wear woolen in December, or why it is hot and uncomfortable in the month of May, and why it rains in June, July? The answers to all these questions can be found out by studying out the climate of India. So by studying the lesson climate, you will understand why in some months of the year there is winter season, some months of the year are the summer months, and then some months like June, July, August, and September. June, July, August, and September. 4 months are rainy season in India. Why all this happens? Why December, January, February are winter months? Okay. And why Climate change. March, April, May are known as hot weather season, means summer season. So how this happens, how these changes take place. So in detail, you will study in this lesson that what is the role of latitude, how latitude affects the climate. Do you know what is latitude? What is latitude of a place? The imaginary line which is drawn from A imaginary line drawn on the earth from east to west. They are Yes. parallel to each other. Drawn on Yes. the earth from east to west, which are parallel from equator and They are parallel to each other. They are parallel to equator. So they are known as latitude. And latitude influences the temperature of the place. You will study with the help of a diagram how latitude influences the temperature of a place. The temperature, high temperature, low temperature, or moderate temperature depends on the latitudinal extent of the place. So you will study about this. Then what is the role of height? What is the role of nearness to the sea? If a place is near to the sea, there is moderating effect on the climate. If the place is very far away from the sea, it is known as continental climate, which is very hot in summer, very cold in winter. So it is extreme climate. So there are several things, several factors which have its influence on the climate. So firstly, you have to study about the difference in climate and weather. Okay, so what is climate and what is weather? Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. If the average is taken out from the study of 30 years, then it is known as climate. Okay, so climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. It is the average of a long period of time and it is studied over a large area. जहां से जहां तक एक तरह का सिचुएशन मिलता है उसको एक क्लाइमेटिक रीजन में रखते हैं, ठीक है ना. तो ऐसे करके ना पूरे कंट्री में कई तरह के इंडिया तो ऐसे मॉनसून क्लाइमेट में आता है और पूरे कंट्री को देखें ना तो कई सारे क्लाइमेटिक जोन में बटा हुआ है. तो वो किस बात पे डिपेंड करता है कि कितने बड़े रीजन में एक तरह का ये एवरेज कंडीशन आता है. मतलब 30 इयर्स के स्टडी का जो 30 इयर्स के डेली का जो वेदर कंडीशन है उसके स्टडी का जो एवरेज रिजल्ट आता है वो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है ना. तो ये डिपेंड करता है, जैसे इंडिया से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, भूटान, ये सब को एक में मिला दें, ये सब मानसून क्लाइमेट के अंदर आता है, ठीक है ना. तो जहां से जहां तक एक तरह का ये एवरेज वेदर कंडीशंस है तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. तो ऐसे पूरे वर्ल्ड को ना 14 क्लाइमेट 16 क्लाइमेटिक जोन में लगभग बांटा गया, ठीक है. तो और वेदर नाम से ही तुम्हें पता चलता है, वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम.
That means weather changes within few hours, within day to day, like this. Okay. वेदर मतलब आज का वेदर ऐसा है, अभी सुबह का वेदर ऐसा है तो शाम का वेदर चेंज हो सकता है, ठीक है ना? सुबह में क्लाउडी था तो अभी सनी वेदर हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो ये जो Yes, ma'am. घंटों में या 24 घंटे के अंदर जो चेंजेस हम देखते रहते हैं उसको हम वेदर कहते हैं. तो वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया. एक ये लोकली होता है, ये वेदर जो है ना वो लोकल इफेक्ट है. और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पटना में अगर आज सुबह में क्लाउडी वेदर था तो कोई जरूरी नहीं कि गया में और भागलपुर में भी क्लाउडी वेदर हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं. तो ये लोकल होता है. तो एन एरिया का ये है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी एरिया का किसी पॉइंट ऑफ टाइम में किस तरह का एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसी को वेदर कहते हैं. तो वेदर को हम कई नामों से जानते हैं. क्लाउडी वेदर, सनी वेदर. सनी वेदर मतलब जैसे एकदम क्लियर धूप निकली रहती है तो उसको सनी वेदर कहते हैं. विंडी वेदर मतलब बहुत तेज हवा चल रही है तो विंडी वेदर कहते हैं. काम वेदर, काम मतलब CALM, काम मतलब एकदम शांत है ना, जब हवा के Rainy weather. भी नहीं चलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काम वेदर. पूछेंगे आज का वेदर कैसा है तो टुडे इज वेरी काम वेदर, है ना. और इस तरह से मगी वेदर एक और भी टर्म है जिसको कहते हैं मगी, है ना. एक मिनट रुकना तो जरा सा, हम स्कूल का फोन आ रहा है थोड़ा सा. बहुत कम हो गया ना. Today you will write a question. Start writing. Define climate and weather. Define climate and weather. Are you writing? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो हम लोग एक और बात कर रहे थे कि एक जैसे बोलते हैं ना कि ये मगी, MUGGY, मगी वेदर भी एक होता है. तो वो उसका क्या मतलब हो गया कि जैसे कि बहुत ये टेम्परेचर भी हाई हो, ह्यूमिडिटी भी हाई हो, बहुत पसीना चलता है जैसे वेदर में, तो उसको मगी वेदर कहते हैं. तो यहाँ पे वो सब डिटेल नहीं दिया हुआ है, लेकिन वेदर ना इस तरह से कई नामों से जाना जाता है. क्लाउडी वेदर, सनी वेदर, विंडी वेदर, है ना, मगी वेदर. Ma'am, rainy weather. हाँ, उसको वेट वेदर कहते हैं. वेट वेदर, ड्राई वेदर. तो वेदर क्या है, लोकल फेनोमिना है. किसी एरिया में किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो सिचुएशन होता है. लेकिन इन्हीं सब सिचुएशंस को बहुत बड़े रीजन में स्टडी करते हैं और 30 इयर्स का एवरेज निकालते हैं. तो जो एवरेज वेदर कंडीशंस एक बहुत बड़े एरिया में एक सेम टाइप का ट्रेडिशन मतलब ये चलता रहता है, तो वो तब उसके बेसिस पर हम क्लाइमेट कैलकुलेट करते हैं. ठीक है ना. तो ये क्वेश्चन पहले लिखो, इसका आंसर लिख लो, इसको याद कर लेना है. What is climate and weather, or define climate and weather? हाँ सर.
Repeat the question. Define climate and Define weather. Define climate and weather. Or what is climate and climate weather. and weather? क्लाइमेट को तो लिख ही लो, यहाँ से देखो, लिखो. Climate refers to the sum total of. Climate refers to the sum total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time. और ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कितना एवरेज होता है? मोर देन 30 years. 30 years. 30 years. Yes, ma'am. For example, India comes under monsoon climate. अब दूसरा लिखो वेदर. है ना, क्लाइमेट भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे टेम्परेट क्लाइमेट, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, मतलब 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास के जो रीजन है, 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में, तो वहां पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है, इक्वेटर के आसपास. इक्वेटोरियल क्लाइमेट के बारे में तुम लोग पहले भी सुने होंगे कि इक्वेटर के आसपास वाले लैंड में ना कोई चेंज ऑफ सीजन नहीं होता है, वहां पूरे साल भर एक ही तरह का वेदर कंडीशन रहता है. There is no change of season like the monsoon climate, है ना. Ma'am, day and night is equal in equator. हाँ, there is every day high temperature and heavy rainfall every day. There is no winter season, no change of season. The same weather conditions remain every day, which is known as equatorial climate, high temperature and heavy rainfall. ठीक है ना. अब monsoon climate में क्या है कि there is change of season. एक बार विंटर सीजन हुआ, फिर समर सीजन हुआ, समर सीजन के बाद रेनी सीजन आएगा, रेनी सीजन ओवर होता है तो उसके बाद हमारा एक रिट्रीटिंग मानसून होता है, मतलब मानसून विंड जो आया था कंट्री के अंदर, रीजन के अंदर, वो रिटर्न होता है, तो उसको रिट्रीटिंग मानसून सीजन कहते हैं, वो अक्टूबर नवंबर में होता है. तो इस तरह से हर क्लाइमेट का ना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. अब जैसे मानसून क्लाइमेट में जो रेनी सीजन होता है वो कौन से 4 महीने होता है? जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर. ठीक है. हाँ, और वही अब एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का देखो एग्जांपल. मेडिटेरेनियन क्लाइमेट वर्ल्ड के मैप में देखोगे ना क्लाइमेटिक रीजन, तो एक मेडिटेरेनियन क्लाइमेट करके भी एक रीजन है, तो उस क्लाइमेट में ना विंटर सीजन में रेनफॉल होता है. तो हर क्लाइमेटिक रीजन का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स. तुम एटलस खोल के देखोगे ना, उसमें क्लाइमेटिक रीजन देखो कि कितने क्लाइमेटिक रीजन में पूरे वर्ल्ड को बांटा गया है. ठीक है ना. अच्छा, वेदर लिख लिए, लिखो. वेदर रिफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर Written, ma'am. हाँ, लिख लिए. Completed, ma'am. Yes, ma'am. तो इसके आगे हम एलिमेंट्स बताएंगे. अब इसका स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अब यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखो. नहीं, यहाँ इसका भी एक एग्जांपल लिख लो. फॉर एग्जांपल सनी वेदर, क्लाउडी वेदर, काम वेदर एक्सेट्रा. और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करो. The elements of weather and climate are same. That is, पैराग्राफ चेंज करने के बाद ये लिखो, ये दोनों के लिए है, क्लाइमेट के लिए भी है और वेदर के लिए भी है. The elements of weather and climate are the same. That is, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. मैम वेदर एंड क्लाइमेट के आगे The elements of weather and climate are the same. That is, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation.
देखो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वेदर हो या क्लाइमेट, इसमें कौन कौन से एलिमेंट का स्टडी होता है? टेम्परेचर का स्टडी होता है कि आज दिन भर का टेम्परेचर कैसा रहा, पूरे सालों भर का टेम्परेचर में मैक्सिमम मिनिमम क्या रहा, एवरेज टेम्परेचर क्या रहा, मतलब टेम्परेचर का डिटेल, वेदर के लिए भी क्लाइमेट के लिए भी। और उसी तरह से टेम्परेचर के बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स द प्रेशर ऑफ एयर, द layers of air exert pressure on the lower layer, ठीक है ना, ऊपर से हवा का दबाव नीचे की तरफ पड़ता है अर्थ सरफेस की तरफ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, एयर का प्रेशर स्टडी किया जाता है। और विंड, विंड में दो चीजें स्टडी की जाती हैं, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड स्पीड ऑफ विंड, ठीक है ना। कौन सी दो चीज का स्टडी किया जाता है विंड में, बोलो? Direction of wind and speed of Speed of wind. the wind. Speed of the हाँ। wind and direction of हाँ, अब जैसे विंड स्पीड स्टडी करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर। और विंड डायरेक्शन स्टडी करने के लिए विंड वैन होता है, VAN, विंड वैन। तो शायद तुम लोग पहले भी इसका डायग्राम देखे होंगे या पिक्चर। तो और फिर Yes, ma'am. अगला पॉइंट क्या है, ह्यूमिडिटी। Yes, ma'am. Humidity means amount of water vapor present in the air is known as humidity, ठीक है ना। डिफाइन करो तो, व्हाट इज ह्यूमिडिटी? Amount of water vapor present in of air. Water Water present in air is known as air is humidity. Humidity. Is known as humidity. ह्यूमिडिटी का भी स्टडी किया जाता है कि आज एयर में ह्यूमिडिटी है, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखो, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन को तो एक लाइन में लिख भी लो अलग से, एक क्वेश्चन फ्रेम करो तो, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? स्टार्ट राइटिंग, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? मैम आंसर 1 कंप्लीट हो गया। क्या? मैम आंसर 1 कंप्लीट हो गया, उसमें क्या कंप्लीट हो गया? मैम आंसर 1 बस यही तक था या और भी लिखना है? क्लाइमेट और वेदर कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। चलो क्लाइमेट वेदर को अलग अलग डिफाइन कर दिए और दोनों के एलिमेंट्स का नाम, दोनों के अंजलि, अंजलि माइक बंद करो। No. थोड़ा केयरफुल हो जाओ, है ना, कि कभी कभी वीडियो मेरा भी ऑन रह जाता है, कभी हम सिर्फ माइक ऑन रखना चाहते हैं, तो ऐसा इस पे ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब प्रेसिपिटेशन का मीनिंग समझना है कि प्रेसिपिटेशन किसको कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर से आने वाला जो मॉइस्चर है ना, वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, रेनफॉल के फॉर्म में हो, स्नोफॉल हो, कुछ भी हो, स्लीट हो, हेल हो, कुछ भी हो, तो उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो लिखो, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. तो लिखो, कमिंग डाउन ऑफ मॉइस्चर, coming down of moisture from the atmosphere to the earth's surface in any form, in To the earth's surface, in any form, like Any form. like rainfall, snowfall, कॉमा देके लिखते जाना, rainfall, snowfall, hail, 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 comma, sleet, 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 etc. ठीक है ना। रेनफॉल जो है उसको भी प्रेसिपिटेशन कहते हैं, स्नोफॉल जो आ रहा है उसको भी प्रेसिपिटेशन कहते हैं, या ओले गिरते हैं, हेल स्टोन गिरता है, उसको भी हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। तो शिवांगी तुम रिपीट करो। Coming down of moisture from the atmosphere to the earth's surface in any form like rainfall, snowfall, hail, or sleet is known as precipitation.
मैम स्लीट क्या होता है? स्लीट ये भी आइस फ्लेक्स होता है ना, बहुत हाई अल्टीट्यूड में जो आइस फ्लेक्स ऐसे माने पानी के जो लेयर्स है ना वो जम जाते हैं और वो जमे हुए फॉर्म में फ्रोजन कंडीशन में ही लैंड तक पहुंच जाते हैं, धरती तक, तो उसको स्लीट कहते हैं, ठीक है ना। और जो ओले गिरते हैं मतलब सॉलिड आइस गिरते हैं जो स्टोन के फॉर्म में, तो उसको कहते हैं हेल स्टोन। हेल लिखे हो ना, वही हेल, ओले कहते हैं इसको हिंदी में। ओले गिरते हैं ना, जैसे अप्रैल महीने में आंधी आती है, अप्रैल मई में शाम के समय, तो ओले गिर जाते हैं उसके साथ, तो उसको हेल स्टोन कहते हैं। तो किसी भी फॉर्म में मॉइस्चर जब नीचे आ रहा है तो उसको माने एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस को आ रहा है तो उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का 90% पार्ट जो है वो रेनफॉल ही होता है और बाकी 10% के अंदर वो सारे होते हैं स्नोफॉल, हेल्स, स्लीट एक्सेट्रा। ओके, तो देख लिए कि वेदर और क्लाइमेट के लिए किस चीज का स्टडी करना पड़ता है। टेम्परेचर का स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का स्टडी करते हैं, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन का स्टडी करते हैं, और इन्हीं सारे एलिमेंट्स के स्टडी के बेसिस पे हम बताते हैं कि वो क्लाइमेट कैसा है या वेदर कैसा है। अगर डे टू डे इन सारे एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं तो वेदर हो गया, और बहुत सालों का एवरेज स्टडी करके बताते हैं तो वो हो गया क्लाइमेट, ठीक है ना। तो क्लाइमेट हो या वेदर, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का स्टडी करते हैं? टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इसी का स्टडी करते हैं। तो लोकली और कम समय के लिए अगर स्टडी किए तो वो वेदर हो गया, और नहीं तो एक लंबे समय का एवरेज निकालते हैं एक बड़े रीजन में तो उसको क्लाइमेट कहते हैं। समझ गए? यहाँ से एक बार फिर से पढ़ो तो, कोई भी एक बच्चा। Yes, ma'am. Climate refers to the sum of total of weather conditions and variations over a large area for a long period of time, more than 30 years. Weather refers to the state of atmosphere over an area at any point of time. The element of weather and climate are the same, that is temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, and precipitation. You may have observed पढ़ते जाओ, फिर से पढ़ो। You may have observed. but there is that you may have observed that the weather conditions fluctuate very often even with a day, but there is some common pattern over a few weeks or months. That is, days are cool or hot, windy or calm, cloudy or bright, and wet or dry. On the basis of the generalized monthly atmospheric conditions, the year is divided into seasons such as weather, summer, or rainy seasons. हाँ, ये देखो लास्ट लाइन, ऑन द बेसिस ऑफ द जनरलाइज्ड मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, है ना, कि हर एक मंथ में कैसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहा। तो क्या देखते हैं कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में मंथली कंडीशन कैसा है कि टेम्परेचर बहुत लो रहता है, तो फिर वो हमारा किस में आ गया? विंटर सीजन में आ गया। तो फिर देखते हैं कि मार्च से तेज गर्मी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे अप्रैल मई में और भी तेज हो जाती है गर्मी, तो मार्च अप्रैल में को समर सीजन में रख लिए। और जून से इंडिया में ना रेनफॉल शुरू हो जाता है, केरला कोस्ट में 1 जून से ही रेनफॉल शुरू आ जाता है, तो और धीरे धीरे 15 जून तक पूरे कंट्री में आ जाता है। तो इसको फिर देखते हैं, मंथली स्टडी उस समय करते हैं तो पता चलता है कि जून में भी रेनफॉल हो रहा है, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी रेनफॉल हो रहा है। तो इतना देखते हुए हम लोगों ने क्या एवरेज बना लिया कि जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर आर द रेनी सीजन मंथ, ठीक है ना। फिर ऐसे ही करके हम लोग सीजन्स का डिवीजन कर लेते हैं, और बहुत सालों तक ऐसे ही सीजन का एवरेज देखते हुए हम वो क्लाइमेट बता दिए कि ये किस तरह का क्लाइमेट है इस रीजन में। इंडिया से लेके पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिलाते हुए कौन से क्लाइमेटिक रीजन में आता है, तो वो मानसून क्लाइमेट में आता है, ठीक है। Yes, Yes, ma'am. ma'am. एक इधर का ये भी पढ़ो, द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू
The world is divided The world into is a number divided of into climatic The regions. world is Hmm. divided Know into a what type number of of climatic India reasons. has and why it is India so. has and why it is so. We will learn about in this chapter. तो देखो तुम आज अभी एटलस खोलोगे क्लास के बाद, और एटलस में ना क्लाइमेटिक रीजन का डिवीजन दिया हुआ रहता है वर्ल्ड का, तो वो तुम जरूर देखो कि पूरा वर्ल्ड जो है वो कितने सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस में रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे तुम अगर पोलर रीजन का बेल्ट देखोगे, पोलर रीजन, तो उसको टुंड्रा क्लाइमेट कहते हैं। पोलर क्लाइमेट को क्या कहते हैं बोलो? Tundra Tundra. climate. हाँ, तो जैसे आर्कटिक, Tundra climate. हाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल से लेके नॉर्थ पोल तक, और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक सर्कल से लेके साउथ पोल तक, वो जो पूरा रीजन है वो कौन से क्लाइमेट में आता है? तो टुंड्रा क्लाइमेट में आता है। Tundra. Tundra climate. Tundra. हाँ, टुंड्रा क्लाइमेट में क्या क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है, माइनस में रहता है, ठीक है, और वहाँ का जब समर मंथ शुरू होता है तो वो भी एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, थोड़े बहुत आइस जो है वो पिघलते हैं मार्जिनल साइड के, जैसे ग्रीनलैंड है तो उसके किनारे किनारे के आइस थोड़े पिघल जाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा ग्रीनलैंड जो है वो फ्रोजन ही रहेगा समर में भी, ठीक है ना। और फिर यहाँ चूंकि ये पोलर रीजन में है तो 6 मंथ के डे और 6 मंथ के कंटिन्यूअस नाइट होते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अर्थ के रिवॉल्यूशन के Climate. कारण जब 6 महीने तक जब नॉर्दर्न पोलर रीजन में डे टाइम रहता है तो उस समय साउथ पोल में क्या रहता है? Night. नाइट। Night. और जब धीरे धीरे करके नॉर्दर्न पोलर रीजन में जब नाइट हो जाता है तो सदर्न पोलर रीजन में डे टाइम होता है, तो इट्स Day. कंटिन्यूअस 6 महीने की दिन और 6 महीने की रात हुआ करती है, और एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, पूरे आइस सीट जो है ना वहीं पर है पोलर रीजन में ही, पूरा अंटार्कटिका, पूरा ग्रीनलैंड। तो अगले क्लास में ना तुमको हम डिटेल में, अच्छा तुम लोग अगर चाहोगे तो फिर हम वही सेकंड लेसन का रिवीजन ही करा देंगे, ठीक है ना। तो अभी कितना टाइम है देखिए, 4 मिनट। यहाँ देखो, the word monsoon is derived from the Arabic word monsoon, which literally means seasons. आवाज आ रही है? See? किसका माइक ओपन है देखो तो। Ma'am, Vansh Raj. Vansh Raj. वंशराज तो कभी क्लास में रिप्लाई भी नहीं Yes, करता ma'am. है, हल्ला करने के लिए बैठ गया है। यस मैम, बैठ गया। हाँ, तो अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा यही से, व्हाट इज मॉनसून? लिखो तो ये क्वेश्चन, व्हाट इज मॉनसून? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मॉनसून सीजनल विंड का नाम है, ये सीजनल विंड है कि साल में एक सीजन में या ये सीजन में। मैम फिर कर रहा है वंशराज। हाँ हाँ, और इसका नाम भी हट जा रहा है, नहीं तो उसको रिमूव कर देते ना। मैम सबसे नीचे चला जा रहा है उसका नाम। हाँ। मैम वो करने के बाद ऑडियो डिस्कनेक्ट कर ले रहा है, फिर ऑडियो कनेक्ट कर ले रहा है, उसके बाद कर। अच्छा, तो हम लोग को भी तो कुछ करना चाहिए। यस मैम, मैम बहुत बुद्धि लगा। दूसरे का नाम आ जा रहा है, जानते हो, और इसी चक्कर में ना दूसरा बच्चा ना रिमूव हो जाता है। चलो ये तो रिमूव हो गया, और ना हमेशा के लिए रिमूव कर देंगे उसको तो।
क्योंकि कभी पढ़ाई में तो उसको देखे नहीं। चलो लिखो यहाँ से। मॉनसून बता दिए तुमको, एक सीजनल विंड का नाम है। विंड कई तरह के होते हैं, जैसे परमानेंट विंड होते हैं, लोकल विंड होते हैं, सीजनल विंड होते हैं, समझ गए। तो ये मॉनसून क्या है, एक सीजनल विंड है। और इसका नाम कैसे पड़ा, तो एक अरेबिक वर्ड से पड़ा। अरेबिक पीपल इंडिया में आते थे ट्रेड करने के लिए, और उनको अरेबियन सी में ना मॉनसून विंड से सामना होता था, तो उन लोगों ने ही इसका नाम रखा। उन्हीं के अरेबिक वर्ड से ही ये वर्ड निकला है मॉनसून। लिखो, द वर्ड मॉनसून इज derived from Arabic word mausim, which literally means season. The word monsoon is derived from the Arabic word mausim, which literally means season. Yes, ma'am. मौसम से Yes, मॉनसून। ma'am. अगला सेंटेंस भी लिखो इसी के कंटिन्यूटी में। मॉनसून रिफर्स टू द seasonal reversal. Monsoon refers to the seasonal reversal in the wind direction during a year. एक मिनट बचा है, जल्दी से एक सेंटेंस और लिख लो। During summer, it blows from sea to land. During summer, it